In April, we did Admission by Tanvi Butch Chawla. In June, and now we are doing Pagla Ghoda today. In October, Mukund Marathi will direct Art by Yasmina Reza, and in December, we have a play called Safe by Donna Hoke. 3 of these productions are well-known scripts. 3 of them are winners of a script writing contest that Natak announced this year called Inkpot. We had submissions come in and we selected 3 scripts that were presented here today. 2 of them were already done, and Safe later this year is also the final winner of that script writing contest. In addition to our 6 stage readings, hopefully many of you know Natak does main stage productions. We have already done 2. We did Rabbit Hole a few weeks ago in Kabarli Theatre, and in September, back again in Kabarli Theatre, we have Sujit Saraf's Vrindavan, which is a spectacular grand musical that we are presenting, written by Sujit Saraf and directed by him as well. We will have maybe 50 people on stage, I believe, actors, dancers, musicians. It will be a spectacle. So if you have not been to a Natak main stage production, you don't want to miss this one. This is Natak's 20th year and our 50th production. So it is our most ambitious production ever. It was a script that won a Knight Foundation grant, and Natak applies to grants as part of a non-profit. That is our way to be able to generate money to do productions that we cannot otherwise financially sustain. So we're very proud of that. Natak also won Best in Silicon Valley, and thanks to many of you who helped us achieve that. So not just Best Indian Theatre Company, Best Theatre Company in Silicon Valley, something which we're very happy to have received this year. So without further ado, let me talk to you, let me hand over the stage to Abhishek Das, who is going to tell us a few words about Pagla Ghoda. Thank you, Harish. आप सबकी कहानी के लिए बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने से इस नाटक के बारे में सुना होगा पहले से, पगला घोड़ा. I would say that's about 15-20%. So Bengal में is really popular. Badal Sarkar is probably the most famous playwright in Bengal. उनके कई और नाटक हैं, एवं इंद्रजीत और पगला घोड़ा are probably his most popular ones. The interesting thing is कि जब पहली बार पगला घोड़ा का मंचन हुआ था, that was in 1971. He wrote this in 1967, but when he was actually in South Africa at that time. So he didn't stage it, obviously in South Africa, but he came back and he worked with 2 theatre groups, parallelly almost, one for Bengali and one for Hindi. So Hindi wala, I think Shyamanand Jalan ji ne kiya tha, and Bengali one was done by Shambhu Mitra. And Shambhu Mitra again is another very famous theatre persona in Bengal. तो मैं आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला, मैं बस क्या करने वाला हूँ कि मैं उनके डायरी से एक पेज पढ़ के सुनाने वाला हूँ जो 1967 में उन्होंने लिखी थी when he was in South Africa and it was in the middle of his writing. So it will give you a little bit of flavor कि कैसा उनके what he was going through when he wrote it. और बाकी नाटक तो आप देखें. So let me just start. ये है 25 जनवरी 1967. वो अपने लिख रहे हैं अपनी बेटी को, मनु. आज 5वां दिन, 20 तारीख को नाटक शुरू किया था. 61वें पेज पर यह अफ्रीका का 6ठा नाटक है और पहला अपना नाटक, किसी का चोरी किया माल नहीं. रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, काम न करूँ तो भी दूसरी बातें सोचता हूँ. नाटक की याद ही नहीं आती. 4 बजे खाना खाने के बाद अखबार पत्रिका आदि उलटता पुलटता, कुर्सी पर थोड़ा लुढ़क लेता हूँ. 6 बजे चाय पीकर अखबार पढ़ता हूँ. पूरा पढ़ता नहीं, बस उलट पुलट कर भीतर घुसने की चेष्टा करता हूँ. बगीचे में टहलता हूँ, सोचता हूँ इस बार क्या लिखूंगा, ये सोचता हूँ. नहीं जानता मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लिखने के बाद ही जैसे एक नशे की सी स्थिति में हूँ. मालती, मिली, लक्ष्मी सब जैसे जीवंत होती चलती हैं. जैसे सामने देखता हूँ, इनमें से किसी को भी क्या पहले कभी देखा है? अलग अलग करके नहीं देखा, लेकिन जिनको देखा है उन सब में इनका थोड़ा थोड़ा अंश मिला हुआ था. मालती, मिली, लक्ष्मी और ये नामहीन लड़की जो अकेली ही मालती, मिली, लक्ष्मी और वो स्वयं सब है. हिमाद्री, शशि, सातकोड़ी, कार्तिक, इन्हें क्या देखा है?
ये क्या मनुष्य के रूप में एक एक अलग अलग व्यक्ति के रूप में उभर कर आए हैं? शायद नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। ये नाटक चरित्र सृष्टि के उद्देश्य से लिख भी नहीं रहा, तो किस उद्देश्य से लिख रहा? कोई उद्देश्य नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई तत्व प्रमाणित नहीं हो रहा। यदि कुछ प्रमाणित हो ही तो पंडित लोग उसे लेकर नाराज हो सकते हैं। फिर भी लिख रहा हूं और लिखने में डूब पा रहा हूं। लगता है मैं जो लिख रहा हूं वो मेरा जाना हुआ है, मैं जानता हूं। बहुत भूले हैं, मतलब गलतियां हैं, बीच में कहानी बदल गई। उसका कारण पहले की बहुत सी बातें बेकार हो गई, भूल हो गई। वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले पूरा तो करूं। शशि, हिमाद्री, सातकोड़ी, मालती, मिली पार हो गए। लक्ष्मी अभी अभी पूरी हुई है, बाकी बचे केवल कार्तिक और वो नामहीन लड़की। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कस्बे के बाहर एक शमशान। शव यात्रा में आए लोगों के बैठने के लिए एक कोठरी जो मंच का आधा हिस्सा घेरे। कोठरी में एक बड़ी चौकी, पीछे बाईं ओर खुली खिड़की। दूर कहीं आग जलने का आभास मिल रहा है। लाल रोशनी रह रहकर नाच उठती है। पर्दा खुलने पर कोठरी में 4 आदमी बैठे 29 खेल रहे हैं। 2 चौकी पर बैठे हैं और 2 नीचे। एक हाथ खेल होने के बाद बातचीत शुरू होती। चिड़ी डबल की बाजी है, याद है ना? 18 बोले हो? शशिदा ये रहा। बस रंग खलास। किस बुद्धे का चिड़ी रंग लगाए थे? हाँ 1 2 2 3 3 6 2 8 10 12 13 तो काला खोलिए शशि बाबू। 5 काला हो गया साथी बाबू। एक और खुल जाए तो इनकी काली झंडी तैयार। एक बार जरा दिखाया जाता। मैं जाता हूँ। अरे हर बार तुम ही क्यों जाओगे? इस बार मैं जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप बैठिए। अरे अभी उम्र कम है इसकी भाई, हम लोगों से कितना छोटा है। 2 बार चला ही गया तो क्या हुआ? हम लोग भी जब उसकी उम्र के थे ना तो इसी तरह। अरे कार्तिक बाबू तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे इनकी न जाने कितनी उम्र हो गई हो। अब तक कितने पसंद पाल किए हैं आपने, बताइए तो जरा। बहुत सारे। अरे फिर भी कितने? 50? 50? अच्छा बाबा, 50 नहीं तो 55। और क्या? 55? मानिए और ज्यादा। जी हाँ। नहीं नहीं, अभी पिछले फागुन में 49 पूरा किया। वाह कार्तिक बाबू वाह, बसंत काल पास किए हैं 49 और गुमान इतना। मैं तो 2 साल पहले ही 49 पास कर चुका हूँ। अरे तो आप 51 के हैं? यस सर, 51, हाफ सेंचुरी प्लस 1। पॉसिबल। आप मुझसे बड़े हैं। लगता तो ऐसा ही है। साधु बाबू को देखकर कोई कह सकता है ये 51 साल के हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे कसम से सच कह रहा हूँ। मैं तो मानता था कि कार्तिक बाबू आपसे ज्यादा नहीं तो 10 साल तो बड़े होंगे। बाप रे 10! अरे नहीं शशि बाबू, रात दिन कुलियों के साथ माता मारने में ही बीत जाता है। सर्दी गर्मी रात दिन कब आते हैं कब चले जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। बुढ़े होने का टाइम ही कहाँ मिला। वाह 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 साधु बाबू, क्या बात कही। लोगों को जैसे मरने की फुर्सत नहीं मिलती, वैसे ही साधु बाबू को बुढ़े होने की फुर्सत नहीं मिली। सच साधु बाबू, आपको देखकर मन करता है कि पोस्ट मास्टरी छोड़कर ठेकेदारी शुरू कर दो। शशि बाबू, ऐसी सुख की जिंदगी छोड़कर आपको इस झकमारी में काम करना है? अरे झकमारी तो हर कहीं है। अब देखिए ना, हम लोग यहीं पड़े सड़ रहे हैं और कुछ नहीं तो आपने इस बीच में ना जाने कहाँ घूम चुके हैं, ना जाने कितना कुछ देख चुके हैं। भाई आप लोगों की लाइफ इंटरेस्टिंग है। मुझे इंटरेस्टिंग लाइफ का शौक नहीं है। मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ भाई। जी हाँ ठीक है। दवा का ठीक माफ करते करते आंखों के 12 बज गए हैं और कमरे के कोने में दिन भर स्टूल पर बैठे बैठे जोड़ों को गठिया निकल कर दिया है। अरे भाई, कमरे के कोने में बैठे बैठे ही कार्तिक कंपाउंडर ने बहुत दुनिया देखी है। वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं।
सभी को घूम फिर कर दवा खाने में हाजिरी देने आना ही पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे सबको एक ना एक दिन यहाँ आना पड़ता है। हाँ, आप ही लोग तो यहाँ के सिंहद्वार हैं। हाँ, ऐसा सिंह द्वार जहाँ सब आते हैं और हंसी खुशी दक्षिणा भी दे जाते हैं। अरे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कार्तिक बाबू, 52 तोले पाव रत्ती सही। पर मैं पिछली बार कब आपके सिंहद्वार पर आया था ये तो याद नहीं आता। अरे ऐसा मजबूत शरीर पाया है कि बीमारी भीतर घुसी नहीं पाती। हाँ, क्या कहे जा रहे हैं? ऐसे नहीं कहते, कौन जाने? ऐसे कहते नहीं, ऐसे करते नहीं, ऐसे देखते नहीं, ऐसे सुनते नहीं, ऐसे खाते नहीं, ऐसे पीते नहीं। अरे ये सुन सुन के मेरा कान पक गया है। जब से होश पाया है तब से यही सुनता आ रहा हूँ। पर दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैंने ना किया हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने ना देखा जाना हो। फिर भी तो मजे में हो, कुछ तो नहीं हुआ। लीजिए, पीने की बात से याद आई, सातू बाबू वो निकालेंगे नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हिमाद्री के सामने? हाँ, हिमाद्री तो जैसे मिट्टी का माधव है। नहीं नहीं, पर अभी बच्चा है। बच्चा 30 के आसपास पहुंचा होगा और आप उसे बच्चा बच्चा कह रहे हैं। मेरे स्कूल टीचर लोग जिंदगी भर बच्चा ही रह जाते हैं। फिर हिमाद्री को तो आदर्श वादर्श का रोग भी लगा रहता है ना। आदर्श आदर्श। हंसिए मत साधु बाबू, आदर्श बड़े काम की चीज होती है। मैं भी अपने पास एकादा रख पाता तो रखा क्यों नहीं? किसी ने मना किया था? अरे रखना इतना आसान होता है क्या? धन दौलत की तरह इसे भी जमा करके रखना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों, हिमाद्री बाबू ने कैसे रखा है? हिमाद्री ने सचमुच रखा है या नहीं भगवान ही जाने। जबानी जमा खर्च तो बहुत देर क्या करते हैं। हटाइए भी सातू बाबू, निकालिए ना। हाँ। बहुत चकमक कर चुके हैं हम लोग। वाह वाह, विलायती है, कितने दिनों में देखने तक तो नसीब नहीं हुई है। 4 गिलासों का क्या कीजिएगा? क्या सोच रखा है कि हिमाद्री भी पिएगा? अरे इतना हिसाब कौन रखता है? 4 आदमी थे सो 4 गिलास ले आया। अच्छा किया, कहा नहीं जा सकता। हिमाद्री को यदि ये विश्वास दिला दें कि हम लोग किसी से उसकी चर्चा न करेंगे, हो सकता है उसका आदर्श डगमगा जाए। हाँ ना, एक भले आदमी को बिगाड़े बिना आप लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। बिगाड़ने की किसको जरूरत पड़ी है बाबा? उससे तो अपना ही घाटा होगा, इसमें से हिस्सा बढ़ जाएगा। अरे रुकिए तो, हिस्सा बंटने की चिंता मत कीजिए कार्तिक बाबू। ये क्या? आप एक बोतल और ले आए हैं अपनी गांठ से पैसा खर्च करके? हाँ। अरे पैसा क्या गांठ में रखने के लिए होता है ऐसा? शशि बाबू, आपने तो अभी कहा था कि पैसा रखने की चीज ही नहीं होती। नहीं, पर मालिक बाबू ने जब दिया ही था तब। सच मुझे तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मालिक बाबू ने आखिर बोतल दी क्यों? देते ना तो क्या करते? ऐसे ही कोई इस डरावनी रात में यहाँ आता? वाह, मजाक है क्या? ना आता तो ना सही, पर उससे मालिक का क्या बनता बिगड़ता है ये नहीं पता। आप अभी यहाँ नए नए आए हैं, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, आप कैसे कुछ जानेंगे? अरे मतलब पर कुछ बात समझ नहीं आई। हाँ, सो क्यों नहीं है, कुछ ऐसा है साधु बाबू, कुछ तो है। मालिक बाबू का अपना स्वार्थ था, इसीलिए स्वार्थ? आप उस लड़की को जानते थे? ना, मैंने तो पहली बार ही देखा। लड़की कौन थी? उसका क्या किस्सा था? यह सब भी ना जानते होंगे। ना, मैंने कहाँ से जानूंगा? आपको जब किसी से कुछ मतलब ही नहीं था तो फिर इतनी रात को निकले क्यों? अरे वहाँ निकलता कैसे नहीं? खबर मिली तो फिर आप सब भी तो आ रहे थे। अरे साहब, मुझे तो विलायती का नशा खींच आया और आप खुद गांठ का पैसा खर्च करके एक और बोतल लेकर बस। सच, आप सारे दिन धूप में इधर उधर घूमते हैं, मेहनत करते हैं। आपको इस समय बुलाकर मैंने भूल की। अरे शशि बाबू, आप भी बुलाते ना तो क्या करते शशि बाबू? हाँ, तो भी ठीक ही है। इतनी रात को यहाँ आने को राजी ही कौन होता? फिर इस लड़की के लिए? इस लड़की के लिए माने? ये लड़की कौन है? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा किस्सा क्या है? तुम लोग नहीं जानते? तुम में से कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरा किस्सा क्या है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये लड़की का बहुत बड़ा किस्सा है सातू बाबू, बहुत बड़ा। मुझे तो लड़की का कोई भी दोष नहीं लगता। लड़की का एकमात्र दोष ये था कि वो लड़की थी। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। आप लोग तो इस किस्से को और भी पेचीदा बनाए जा रहे हैं। लगता है जैसे इसके पीछे कोई रहस्य है। किसके जिंदगी में रहस्य नहीं होता? और किस्सा?
किसकी जिंदगी में कोई किस्सा नहीं है? तुम लोगों का कोई किस्सा नहीं है? कोई रहस्य नहीं है क्या? सब कह डालो ना, सब कह डालो और कहकर जी हल्का कर डालो। देखोगे कि तुम सबका किस्सा एक जैसा ही है। सबका एक जैसा किस्सा मिलकर एक रूप हो जाएगा। तुम लोगों का, हम लोगों का, सबका किस्सा मिलकर एक रूप हो। किस्सा? हाँ, तो क्यों नहीं है? कोई बात हुए बिना मालिक बाबू यूं ही विलायती बोतल दे देते। वैसे शशि बाबू बोतल के लिए नहीं आए, ये सही है। हिमाद्री की तो बात ही छोड़िए। देखिए कार्तिक बाबू, मेरा भी कुछ स्वार्थ था तभी आया हूँ, यूं ही नहीं। मेरे पास ना तो हिमाद्री की तरह आदर्श है और ना साधु बाबू की तरह। वाह, मैं तो आप लोगों की कंपनी के लिए यहाँ आया हूँ। ये स्वार्थ नहीं है? स्वार्थ तो है पर ऊंचे दर्जे का। मेरा स्वार्थ बहुत सीधा साधा साधारण सा है। मालिक बाबू को राजी रखने से ट्रांसफर के झमेले से छुट्टी मिल सकती है। पोस्ट ऑफिस के बड़े बड़े अफसरों से उनकी खूब रब्त जब्त है। आप लोग तो इस तरह कह रहे हैं जैसे अपने अपने स्वार्थ के लिए ही आए हैं। स्वार्थ ना होता तो नहीं आते। ऐसे ही? हाँ, ये ब्राह्मण का बेटा तो हरगिज ना आता। आपके कहने का मतलब कि यदि कोई लड़की इस तरह मर जाती, ऐसी लड़की जिसका बाप के सिवाय और कोई ना हो, और वो भी लकवा का शिकार हो और खाट पे पड़ा हुआ फिर भी। साधु बाबू, क्या हिमाद्री की तरह आपको भी आदर्श का भूत हो रहा है? अरे कहाँ, सब ठीक है? हाँ, अब कुछ देर आराम से निश्चिंत हुआ जा सकता है। बैठो बैठो। क्या साधु बाबू से खोलिएगा नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिमाद्री बाबू, बुरा मत मानिए, हमने सुना कि आपको ये सब पसंद नहीं है। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है? मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप लोग लीजिए। मैं इतनी नहीं लूंगा। अरे इतनी कितनी है, शुरू करने से पहले ही नाना करने लगे। सोडा तो है नहीं, किसी को पानी चाहिए? जी नहीं, पानी मिलाकर मैं इसे चौपट नहीं करना शशि चाहता। बाबू आपको? नहीं नहीं, नीति ठीक रहेगी। हाँ चलिए, अच्छा है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले, ये अच्छी बात है। ए हिमाद्री, जरा सा चक्कर देखोगे? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चलता, आप लोग लीजिए। हम लोग तो लेंगे ही, एक दिन तुम भी जरा चक्कर देखो। नहीं नहीं, मुझे माफ कीजिए। डरो मत, तुम्हारे स्टूडेंट्स नहीं जान पाएंगे और हेडमास्टर साहब को तो कहीं दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? प्रिंसिपल का सवाल है। प्रिंसिपल भी नहीं शशि बाबू, असल में मुश्किल क्या है कि स्कूल टीचर को देखने के साथ आप लोग उसे सिद्धांतों का पिटारा मान बैठते हैं। हाँ, तुम कह तो ठीक ही रहे हो। तो फिर जरा सा चखने में क्या हर्ज है? हर्ज नहीं, डर है। स्कूल टीचर को कोई प्रिंसिपल ना भी हो तो भी उसे उसका खोल ओढ़ना ही पड़ता है, नहीं तो नौकरी चली जाए। तो यहाँ इस एकांत में एक दो घूंट लेने से क्या डर है? ये कौन कह सकता है कार्तिक दा कि एक दो घूंट तक ही, इस एकांत तक ही बात खत्म हो जाएगी? ये आप बात गलत कह रहे हैं हिमाद्री बाबू। एक दिन चखने से नशे की आदत थोड़ी ना पड़ जाती है। यदि मन मजबूत हो तो। मेरा मन कितना मजबूत है नहीं पता साधु बाबू। अपने को जितना कुछ जाना है उससे अपने आप पर बहुत भरोसा नहीं होता। अच्छा, हम लोग इधर उधर बहके नहीं जा रहे हैं। बहके जा रहे हैं? देखो हिमाद्री, मुंह पर कहना तो नहीं चाह रहा था, पर सारा गांव, बड़े बूढ़े, लड़के, बच्चे, मास्टर सभी तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। ऐसी तारीफ कार्तिक दा, यही कि मैं गणित अच्छा पढ़ाता हूँ, यही ना? अरे नहीं, इससे बहुत ज्यादा। वो सब सुनकर क्या करोगे? पर हाँ, ये सही है कि जिसका मन मजबूत न हो उसे इतनी तारीफ नहीं मिलती। लोग किसी के बारे में कितना जानते हैं? भूल से भी वह जिसे मन की मजबूती मान बैठते हैं, वो क्या है जानते हैं? हट। एक हट्टी आदमी का जबरदस्त हट। सर, मैं जितनी अच्छी तरह से जानता हूं और कोई नहीं जान सकता। ये हुई ना बात, यही तो तुम्हारा किस्सा है, यही तुम्हारा रहस्य है। भूले जाओ, भूले जाओ। सब लोग एक एक आदमी का एक एक किस्सा, एक एक रहस्य। कौन किसका किस्सा जानता है? बोलो, कौन किसके बारे में जानता है? लीजिए, शुरू कीजिए आप। Cheers! ये क्या? वाह कार्तिक दा, पीने से पहले चीयर्स किया जाता है, आपको नहीं पता? ना भाई, मैं तो कहता हूँ तारा तारा काली ब्रह्ममयी माँ। विलायती की क्या बात है, जी जुड़ा गया। जुड़ा गया नहीं, चला गया कहिए। अरे एक ही बात है भैया, एक ही बात। सच? सच
जलना और जी जुड़ाना एक ही बात है? सच कह रहे हो क्या? तो फिर वे धू-धू करती हुए आग जी जला रही है या जी जुड़ा रही है? और कितनी देर लगेगी हिमाद्री? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। आग खूब तेज जल रही है। हाँ, कम उम्र का मुर्दा है, जलने में देर नहीं लगेगी। अचानक एक कुत्ता जोरों से रोने लगता है। अरे साधु बाबू, कुत्ते की रुलाई सुनकर आप ऐसा चौंक क्यों गए? कुत्ते की ये चीख मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझसे कभी नहीं बर्दाश्त हुई। कभी नहीं? सच? हाँ, कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो बचपन से जाने क्यों। नहीं नहीं, बचपन से नहीं, कभी तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। चलिए हटाइए इसे। हटाइए क्यों? बोलो ना, अपनी कहानी बोलो ना। अच्छा कार्तिक बाबू, 5 ताला तो खुला हुआ ही है, इन लोगों की काली झंडी नहीं खुलवाइएगा? नहीं कहोगे? अपनी कहानी नहीं कहोगे? हाँ ना, आओ तो हिमाद्री, अभी सब गाला बंद करके गाल खोलता हूँ। बोलिए। 16 पास। पास। 17 मेरे 18 पास। साहब, बीवी, पेयर। पेयर? नहीं नहीं, जोड़ा। जोड़ा। वह एक कविता थी ना जो मौसी सुनाया करती थी? जोड़ा जोड़ा, हाँ याद आया। जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा। मारा चाबुक दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीबी, आता है ये पगला घोड़ा। पगला घोड़ा? घोड़ा पगला गया है, घोड़ा पगला गया है, उसे बंदूक से मार दिया गया है, मार दिया गया है। ऑलराइट, वेरी गुड। 11 13 16, चलिए काली झंडी हो गई। अरे काली झंडी। कार्तिक बाबू गिलास बढ़ाइए। आप शशि बाबू? अब और नहीं, मन नहीं कर रहा है। क्यों साहब, हार गए तो रोने लगे? नहीं, हारने की बात नहीं है। अच्छा, क्या जीतने पर हर समय अच्छा ही लगता है? वाह, जीतने पर अच्छा नहीं लगता? नहीं, हर जीत अच्छी लगने वाली नहीं भी हो सकती है। जैसे? जैसे लीजिए, आपने तो मुश्किल में ही डाल दिया। अरे कोई इतना नाप तोल कर थोड़ी ये बात कही थी। अच्छा, मान लीजिए किसी बात पर आपकी बीवी से खूब बहस हो जाती है। बाप रे, बीवी से बहस? अरे शशि बाबू, बीवी वाला और कोई नहीं मिला क्या? क्यों, क्या आपने शादी नहीं की? ना, एकदम नहीं, एक बार भी नहीं। समय ही नहीं मिला। समय ना मिलने के कारण ही ब्याह न कर पाए। लीजिए, इस बार आपने बात पकड़ ली, मैं तो यूं ही। ब्याह करने की इच्छा कभी नहीं हुई। अरे इच्छा हो क्यों? ब्याह करके लोग जो कुछ पाते हैं, यदि मैं वो बिना ब्याह करे ही पा जाऊं तो, और अच्छा इतना ही नहीं, बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा ही पा जाऊं तो। सच? कैसा हो सकता है? लगता है हिमाद्री बाबू को मेरी बात जची नहीं। मुझे जचने न जचने का सवाल नहीं है, मैं तो केवल पूछ रहा हूँ कि क्या वैसा सचमुच होना संभव होता है? देखिए हिमाद्री बाबू, यदि आप कहें कि पुत्रार्थ क्रियते भार्या, तब बात अलग है, पर अपने वंश की बेल बढ़ाने की बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। अब आप ही बताइए क्या करूं? मैंने वंश बेल बढ़ाने की बात तो नहीं कही। तो आपका मतलब घर गृहस्थी, बीवी और उसके हाथ की बनाई हुई रसोई से था? अरे हिमाद्री बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, बात कुछ अलग ही है। और वो अलग बात आपको कहाँ मिलती है? अरे कार्तिक बाबू, ठेकेदारी का काम है, खुद ही मजदूर है और बहुत सारी जगह है। माने भले घरों को बात देकर। आप जिसे भला घर कहते हैं वो एकदम बात तो नहीं रहा, पर उन सब में सचमुच भला कौन है ये भी तो कहना मुश्किल है। थोड़ी और दीजिए तो। अरे ये हुई ना बात, आइए हुजूर, बड़ी खुशी से लीजिए। कातू बाबू आप? तो मैं कभी ना नहीं करता। हिमाद्री बाबू कुछ नहीं, अभी तो नहीं। अरे शशि बाबू, क्या बात है, आप इस तरह बेचैन क्यों हैं?
नहीं, वो पैर जकड़ गया था, दर्द करने लगा। पैर नहीं सर दर्द करने लगा है। और करेगा क्यों नहीं? भीतर न जाने कितना कुछ भरा हुआ है। तुम लोग उसे खाली तो करते नहीं हैं, और सब कुछ उसके बाद मन में संजोए बैठे रहते हो। भीतर ही भीतर कुछ उमड़ घुमड़ तो तुम्हें बेचैन किए है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मालती। मालती तो कब की जलकर भूत हो गई, मेरी तरह जलकर राख हो गई थी इसी तरह। मालती। ऐसे ही धू धू करती आग में ठीक मेरी तरह। हाँ मालती बोलो ना, अपनी हार जीत की कहानी कहो ना। बड़ी अच्छी कहानी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मालती तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझे भगा दोगे? तुमने तो वचन दिया था कि तुम कभी भी। मैंने कोई वचन नहीं दिया था। पर बात हुई थी नहीं। कि तुम कभी भी। कोई बात नहीं हुई थी। तुमने कहा था, तुमने सब कुछ तुम्हारा ही कहा हुआ था। हाँ, हो सकता है, पर क्या वही अच्छा नहीं है? अच्छा बुरा, उचित अनुचित, मंगल अमंगल तुमने सब ठीक कर रखा। तुम सब ठीक जानते हो। तुम विधाता हो ना, तुम्हारे विधान में तो भूल हो नहीं सकती। मालती, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि। क्या जानती हूँ? खुद क्या जानती हूँ? नहीं जानती। इस समय मेरे पास आने का मतलब? चले जाने को कह रहे हो? इसके सिवा उपाय भी क्या है? ठीक है, चली जाऊंगी। पहले भी तुमने चले जाने को कहा था, चली गई थी। जिस रास्ते तुमने जाने को कहा था, उसी रास्ते गई थी। हमेशा तुम्हारी जीत हुई है, हमेशा। जीत? हाँ जीत। क्यों जीत नहीं हुई है? हमेशा तुम ही नहीं जीते हो। कैसी जीत? तुम्हारी और किसकी? अपने आप से जब तुमने लड़ाई की है, तुम ही जीते हो। तुम्हें इतनी शक्ति है, तुम जीत सके। तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, प्रभाव में बहे नहीं गए। तुम हमेशा जीते। हार कैसी होती है तुमने जाना ही नहीं। मैं क्या हार जीत की बात सोचकर? नहीं तो क्यों सोचोगे? तुम तो सोचते हो अच्छे बुरे की बात, उचित अनुचित की बात, मंगल अमंगल की बात। मालती। ठीक है, चली जाऊंगी। पहले भी तुमने चले जाने को कहा था, चली गई थी। मैं जानती थी तुम चले जाने को ही कहोगे। अपनी जीत के दुख का लोग तुम नहीं छोड़ सकते। प्रेम माने ही शमशान, शमशान माने ही प्रेम। झूठ, एकदम झूठ। आप गलत नहीं कह रहे। एकदम गलत, एकदम झूठ। बात समझ में नहीं आई। प्रेम माने शमशान और शमशान माने प्रेम, ये बात कुछ जमी नहीं। इन दोनों में क्या मेल है भाई? है साधु बाबू, खासकर एक माने में। वह क्या? दोनों में आग होती है और दोनों की आग जलाकर राख कर देती है। नहीं, कभी नहीं। प्रेम क्या जलाकर राख करता है? कभी नहीं। आई सी, प्रेम की आग। नहीं, वे आग नहीं जलाती नहीं, जुड़ाती है। प्रेम की आग? हाँ, आप कह सकते हैं, पर शमशान की आग में जलने से पहले प्रेम की आग में जल लेना बुरा नहीं है। हाँ, बोलो ना। उससे कम जिंदा रहने का कोई कारण तो समझ में आता है। आपके कहने का क्या मतलब कि जले बिना जीने का कोई अर्थ नहीं है? मेरे आपके लिए हो सकता है, पर लड़कियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। नहीं कह सकते आप? इसका मतलब आप जानते हैं। ठीक, आप कहना चाहते हैं कि प्रेम की आग में जले बिना लड़कियों के लिए जीवन का कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। मैं सबकी बात नहीं कहता। हाँ, समझ में आ रहा है। किसी एक खास लड़की की बात कर रहे हैं। वही किस्सा तो हम लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारे पास भी कोई किस्सा है? बोलो ना, मैं तुम्हारा किस्सा बिल्कुल नहीं जानती। अरे नहीं साधु बाबू, मेरा कोई किस्सा नहीं है। सच? कोई भी किस्सा नहीं है? अब किसी लड़की को लीजिए। हाँ देखिए ना, एक बार बात उठी थी, फिर बीच में ही रह गई। इस लड़की का क्या किस्सा है, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरा किस्सा कभी मत बोलना। अभी रहने दो, बाद में सुनाना। अभी रहने दो। ये लड़की अभी तो चिता में जल रही है, इसके लिए जीने का क्या अर्थ था, आप बता सकते हैं? क्यों, क्या ये लड़की आप लोगों के प्रेम की आग में नहीं जली? प्रेम की आग में ये लड़की? प्रेम से यदि आपका मतलब कार्तिक था। क्यों, क्या हुआ? ये गंदी बातें, गंदा कारोबार हिमाद्री को अच्छा नहीं लगता। नहीं, कारोबार गंदा होने का सवाल नहीं है, सवाल है आपके कहने का। ओहो, दोष भाषा का है।
ठीक है ना, तुम ही अपनी पवित्र भाषा में बोलो। पवित्र भाषा। शशिदा, मोरलिस्ट। मॉरलिस्ट कौन है? कौन नहीं है? तुम, मैं, कार्तिक दास। मुझे बात देकर बात कीजिए शशि बाबू। आप लोगों के मोरलिस्टों को मैं आखिर जाने दीजिए। गंदी बात करने की मनाही है ना, नहीं कहूँगा। ओहो, झगड़ा क्यों? कैसे मजे में कहानी किस्सा शुरू हो गया था। किस्सा कुछ खास नहीं है साधु बाबू, मैं थोड़े में सब बता देता हूँ। इस लड़की के जन्मते ही माँ मर गई। सारे खानदान में बचा केवल इसका बूढ़ा बाप। बूढ़ा क्या, एकदम खंखर चाहिए। फिर भी उसने 50 बरस की उम्र में 16 बरस की लड़की से ब्याह किया। हाँ हाँ, ऐसे ही तो हमेशा हुआ करता है। कौन जाने हम लोगों के कार्तिक दा एक दिन कुछ ऐसा ही कर बैठे। देखो हिमालय, मैं और जो चाहे करूं, लेकिन ओहो, फिर गर्मा गर्मी शुरू हो गई। ऐसा कहने से कहीं आगे कहानी बढ़ पाएगी? अच्छा ठीक है हिमाद्री, तुम ही बोलो, जैसे मर्जी आए वैसे। नहीं, मैं अब और नहीं करूंगा। मैं वो शशिदा कर। किस्सा सचमुच कुछ खास नहीं है साधु बाबू। इस किस्से को लेकर तो कोई छोटी कहानी भी नहीं लिखेगा। उपन्यास की बात तो छोड़ ही दीजिए। अरे नहीं लिखेगा तो ना सही, हमें उससे क्या। हम लोग यहाँ साहित्य गोष्ठी करने आए हैं क्या, जो कहानी लिखने लाए किस्सा ही करे सुने। और क्या, हम लोग तो शमशान मित्र मंडल के अधिवेशन के लिए जुटे हैं ना। हाँ, अब शुरू करिए शशि बाबू। अरे कहा ना, लड़की का बूढ़े बाप के सिवा और कोई नहीं था। बाप को भी लकवा मार गया था तो हिलने डुलने लायक रखना था। अचानक कुत्ता फिर रो उठा। अरे ये क्या, पैसा खर्च करके लाया गया माल आपने यूं ही। कोई कीड़ा पड़ गया था, ज्यादा नहीं थी। जाऊं एक बार देखा। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए शशिदा की लौट बात नहीं सुनिए। सुनूंगा। देखो कुत्ते को भी खड़ेरा जा सके तो। आज बहुत ज्यादा हो जा रही है। चिंता मत कीजिए, नशे में धुत हो जाइएगा तो हम लोग आपको कंधे पर उठाकर घर ले जाएंगे। लौटते वक्त भी कंधा दीजिएगा। शशिदा, आप भी कैसी बातें करते हैं? ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। आप तो औरतों जैसे बातें करते हैं। होगी, औरतें ही तो बचपन से ये सब संस्कार दिमाग में बैठा देती हैं। दिमाग में आओ, एक बाजी रंग मिलाओ खेला जाए। शशिदा, कार्तिक दा बुरा तो नहीं मान रहे? तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भी कोई बात हुई? बाप रे बाप, बाहर कैसा अंधेरा है। लगता है चंद्रमा आज एकदम गायब है। मगर छोटे साइज का। अच्छा, इस दिन चंद्रमा का साइज क्या था? उससे क्या आता जाता है? नहीं, मैं सोच रही थी छोटे साइज का था शायद, या बड़ा था। अच्छा, उस दिन पूर्णिमा थी क्या? बड़ा सा गोल चांदी के थाल जैसा चांद निकला था क्या? उससे क्या आता जाता है? किसने इतना ख्याल किया था? ख्याल नहीं किया था। क्यों? शमशान पर आकर कौन इतना ख्याल करता है? मुर्दा जलाने आए थे, जलाकर चले गए। मालती? हाँ, मालती का मुर्दा जलाने आए थे, याद नहीं है? तुम और तुम्हारा खिलाया दोस्त, क्या नाम था? प्रदीप या दीपक, न जाने क्या नाम था। प्रदीप। हाँ, प्रदीप, बड़ा अच्छा नाम है। और भी न जाने कौन कौन था, याद नहीं। प्रदीप, शैतान कहेगा। हाँ, एकदम ठीक, शैतान, पक्का शैतान था। उसी के लिए तो मालती। ना, मालती, सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो मालती। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मालती मेरी बात सुनो। मुझसे नहीं होगा, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है मालती, और कोई उपाय नहीं है। मुझसे नहीं होगा, अभी किसी तरह मुझसे नहीं होगा। ये उपाय है मालती, हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यदि तुम प्रदीप से शादी नहीं करोगी तो मैं ऐसा किसी भी हालत में नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। किंतु अब तक तो तुम उसी से नहीं, मैं इतने दिनों तक जानती नहीं थी, समझती नहीं थी। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, उसके साथ ब्याह नहीं कर सकती। मालती, तुमने मुझसे क्यों कहा? तुम क्यों आए? तुम क्यों? किंतु मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं मैं जानती हूँ, तुमने मुझसे कभी नहीं कहा, कभी
को नहीं, मैं अपने आप को नहीं दिखा सकूंगा। अपने आप से इतना हार कर, तुमसे ब्याह कर ना तो मैं खुद सुखी रह पाऊंगा, ना तुम्हें सुखी बना सकूंगा। हार कर तो भारती, आज प्रदीप को छोड़कर तुम मुझसे उससे कभी नहीं ब्याह करना चाहा। भारती, भारती, मुझसे ब्याह करके तुम सुखी नहीं रह पाओगी। और सुख नहीं पा पाओगे तुम। सुख पाना क्या संभव होगा? नहीं होगा। भारती, तुम क्या मुझे बिल्कुल नहीं जानती? अचानक बाहर से कुत्ते की कैंकें सुनाई पड़ती है। तू बाबू ने लगाया कुत्ते को, क्यों भगा दिया? हाँ, यही पास में आराम से बैठे थे बच्चू, जली लकड़ी खींचकर मारा बेटा को। निशाना ठीक बैठा? अरे एकदम भरपूर पीठ पर। मैं मारता ना तो लकड़ी कुत्ते से 10 गज दूर जाकर गिरती। अरे नहीं, पास से मारा था इसलिए। पास से भी मारता तो यही होता। मेरा निशाना कभी ठीक नहीं बैठता। जहां भी निशाना लगाता हूँ उसकी उल्टी तरफ जाके लगता है। लो अब बस करो। और क्या खेल रहे थे? रंग मिलाओ, ऐसे ही समय काटने के लिए, और क्या। क्यों हिमाद्री बाबू, हाँ, नींद आ रही है क्या? नहीं, मुर्दनी में आकर मुझे नींद एकदम नहीं आती, जाने क्यों। आप क्या बहुत सी मुर्दनी में जा चुके हैं? बहुत सी ना भी हो तो भी 12-14 बार तो जाना ही पड़ा होगा। आप? हाँ, मैं इसका हिसाब किताब नहीं रखता। बहुत बड़ा खानदान है, कोई ना कोई रोज मरता ही रहता है। जीते जी कोई संबंध नहीं रखता, पर मरने पर कंधा देकर मैं अपना ऋण उतार आता हूँ। फिर खानदान के बाहर भी यदि माल का तार रहा तो। शशि बाबू, आप भी जरूर इस मामले में काफी जानकारी रखते होंगे। तो क्यों नहीं है? इसका मतलब ये कि इस सब में मैं ही सबसे बड़ा अनाड़ी हूँ। मेरी तो यह तीसरी ही मुर्दनी है। बस? और नहीं तो क्या होगी। बचपन से ही घर द्वार छोड़कर इधर उधर भटकता रहा। इन तीनों में से भी कोई मेरा अपना ना था। मतलब इसका आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? अरे देश में, खानदान में कौन है कौन नहीं पता नहीं। 15 बरस की उम्र में घर छोड़कर भाग आया, उसके बाद से खोज खबर ही नहीं रखी। मतलब घर परिवार कहने लायक आपका कोई भी नहीं है? अरे घर परिवार, जहाँ रहता हूँ वही घर बन जाता है। तंबू, डाक बंगला, कुलियों की बस्ती, सस्ता गंदा होटल, हर कहीं तो रह चुका हूँ। कुछ भी बाकी नहीं छूटा। बीच बीच में कभी कभी सजे बजे कमरों में भी रात काटी है। उसमें बहुत खर्चा पड़ता है, पर रात काटने के लिए जगह वही है। ओह, समझा। समझ गए। अच्छा, बड़ी बुरी संगति में पड़ गए माधुरी बाबू, अपना चरित्र बचा के रखिएगा। अच्छा साधु बाबू, यह जो आप 4 रुपए खर्च करके कमरा भाड़े पर लेते हैं, वहाँ आपकी जरूरत पूरी हो जाती है? जरूरत केवल वही पूरी होती है शशि बाबू, और कहीं नहीं। आप भाग्यवान हैं। अरे भाग्यवान आप भी हो सकते हैं, सीधा रास्ता है, जब कहिएगा चल लेंगे। मैं जा चुका हूँ, काम नहीं बना। माने? माने जरूरत पूरी नहीं हुई। अरे तो फिर ब्याह कर डालिए। मैं ब्याह करते भी देख चुका हूँ। ओ, ब्याह कर चुके हैं? कब? 8 साल पहले एक कोशिश की थी, और क्या। कोशिश किस बात की? अब कैसे कहूँ, माने जरूरत पूरी होती है कि नहीं यह देखने की कोशिश की थी। पूरी नहीं हुई ना, उल्टे 2 साल नरक यातना भोगनी पड़ी। खैर अंत में मुक्ति दे गई, जान बची। तो वो गुजर गई क्या? हटाइए भी। अरे हटाने की क्या बात है हिमाद्री, वैसे मैं मरी नहीं, भाग गई। मानी पीहर चली गई? हाँ, भाग गई कहने से तो मतलब निकलता है कि किसी के साथ भाग गई। हिमाद्री का ध्यान बातों में खूब जाता है, किसी ने गलत समझा और घंटाधार हुआ। क्यों हिमाद्री? मैंने उस दृष्टि से तो नहीं कहा था। मानो उसमें कोई फर्क पड़ता है। मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने उस दृष्टि से नहीं कहा था, तो अब पर मुझे पूरी निश्चिंती हो गई। बात माँ की लाडली बेटी थी, रहने वाले भी बाहर के पटना के थे। सुना कि चोरी चोरी छिपा कर दूसरा ब्याह भी करवा दिया। चोरी चोरी छिपा कर, समझे साधु बाबू? मानो मैं जाता तो बाधा देता। उन लोगों ने तो इतना छिपाया, फिर भी आपको पता लग ही गया।
दुनिया में बहुत से हितैषी हुआ करते हैं ना, तो बड़े हेतु बनकर मुझे सब सुना रहे। उन्होंने जब यह पता चला कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा तो मुझसे ही करंट हो गए। अब तो बोलचाल तक बंद है, वह भी जान बची। अच्छा, तुम ये सब किस्सा क्यों सुना रहे हो? मालती का किस्सा नहीं कहोगे? तब तो बड़ी मुश्किल है शशि बाबू। घर बसाकर भी आपका काम नहीं बना और घर भाड़े पर लेकर भी नहीं। अब आपको कहाँ भेजा जाए? चूल्हे में, घर जो बड़ा हुआ चूल्हा जल रहा है ना। अरे वहाँ तो हम सबको जाना ही है, पर वहाँ पहुँचने के पहले क्या कीजिएगा? तब तक दूसरों को उस चूल्हे तक पहुँचाकर जिंदगी काट दूंगा किसी तरह। नहीं कहोगे? मालती की कहानी नहीं कहोगे तुम? आपका ये हाल कैसे हुआ? ना घर के रहे ना घाट के। अरे बोलो ना मालती की कहानी। कोई कम उम्र में प्रेम के चक्कर में पड़ गए थे क्या? बंगाली लड़का और प्रेम, अरे इतना दम कहाँ है? बंगाली लड़कों में प्रेम करने का दम नहीं होता। दूसरों में कितना होता है पता नहीं, पर मुझ में नहीं था, इतना जानता हूँ। और बंगाली लड़की ने? अच्छा भाई, आपने क्या हो चाहे ना क्या हो, पर क्या कोई लड़की भी आपके प्रेम में नहीं पड़ी? मेरे प्रेम में दुनिया में इतने लोग हैं, उन्हें छोड़कर। झूठे हो तुम। और यदि कोई मेरे प्रेम में पड़ता तो भी क्या मैं घर का ना घाट का रहता? मेरी यह दशा होती। हाँ, सो तो है। आपने तो सचमुच चक्कर में डाल दिया। चक्कर में पड़कर क्या कीजिएगा साधु बाबू, लीजिए गिलास भर दीजिए। अरे हाँ लीजिए। आप शशि बाबू? तारा तारा एक और बात, हाँ, आप लोग क्या बात कर रहे थे? यही शशि बाबू की बहू की। नहीं, उसके पहले जब मैं गया था, उससे ठीक पहले। ओ शशिदा उस लड़की का किस्सा सुना रहे थे। मैं जरा एक बार बाहर हो गया। क्यों, क्या हुआ? ओ, बाहर जा रहे हैं? जाइए हो आइए। मैं भी एक बार हल्का हुआ। चलो चलिए, मैं भी चलूं? जरा बंगाली यूनिटी दिखाई जाए। हमारे बाबू। नहीं, मुझे जरूरत नहीं। सुनते हो? सुनो ना। सुनते हो? पियोगे? पी लो ना। थोड़ी सी पी लो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, नहीं पियोगे तो ना सही, पर अपनी कहानी सुनाओ ना। इन सबको अपनी कहानी सुनाओ। याद आ रही है ना? क्यों? हाँ, पियो। इसी समय पी लो, वो लोग जान भी ना पाएंगे। नहीं पियोगे? अच्छा, तो फिर उधर देखो, वह जो जल रही है, वह लाल आग, एकदम लाल। देखा? एकदम लाल हो रही है। याद आ रहा है ना? क्यों? याद आ रहा है ना? उस समय तो उतनी देर तक आग को देख रहे थे, तब याद नहीं आया था? बोलो, याद नहीं आया? वो क्या मेरा दोस्त था? वही तो, फिर किसका था? बोलो। चूल्हे में जाए। चूल्हे में ही तो चली गई, नहीं गई क्या? इसी तरह तो वह चली थी, एकदम तुम एक टुक देखे थे, नहीं? मिली? हाँ, मिली। मैं हाँ, बोलो, बड़ी सुंदर कहानी है, बोलो। मैं क्या कर सकता था? ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा अंतर, जमीन आसमान का अंतर। बोलिए। हाँ बोलिए, क्या करना होगा? मैंने ऐसा क्या किया है हिमाद्री कि तुम इस तरह कर रहे हो? आपकी जो मर्जी है कीजिए, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? हिमाद्री, मैं जानती हूँ तुम, पर हर समय मुझसे हो नहीं पाता। जिस समाज में मैं बड़ी हुई हूँ, जिन लोगों को बचपन से जानती हूँ, जिनके साथ उठी बैठी हूँ। मुझसे ये सब क्यों कह रही है मिस राय? मैं आपके भाई को पढ़ाता हूँ, उसके बारे में यदि कुछ कहना हो तो, या उस काम में मुझसे कोई भूल हुई हो तो कहिए। तुम मेरी मामूली सी कमी भी नहीं सह सकते, क्यों? डैडी बड़े आदमी है, यही मेरा सबसे बड़ा दोष है ना? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे माफी मांगू? मिस राय! बोलो, तुम यही चाहते हो ना? यदि हाँ तो मैं नहीं करूंगी। तुम जानते हो कि तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, क्योंकि किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। क्या इसीलिए
समय बात न करना ही ठीक होगा। मैं चलूं? हिमाद्री, हिमाद्री, I hate you, I hate you, I hate you, I hate you. क्या बात कही आपने, एकदम 16 आने खरी। मगर ऐसा लगा जैसे शशि बाबू जरा सब कुछ नहीं है, बहुत दिनों से बात की है ना, इसलिए जरा देर बाहर खुली हवा में बैठने से सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक बैठे हैं, दिख रहे हैं। क्या शशिका की तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है, बैठो। जरा सिरदर्द हो गया है, इसलिए थोड़ी दूर बाहर देर घूम के आ रहे हैं, फिर की कोई बात नहीं है। आओ। सत्तू बाबू, मैंने अपना निर्णय बदल दिया है, मुझे भी थोड़ी सी दीजिएगा ना? अरे वाह वाह, क्या बात कही है माधुरी बाबू, इसी की तो कमी थी। भला बताइए, एक ही तीर्थ करें हम चारों और फल प्राप्ति एक तो थोड़ी अलग हो, ऐसे ये भी कोई बात होती है? और तीर्थ भी शमशान तीर्थ। अरे नहीं नहीं, बस बस। अरे हिमाद्री बाबू, ये तो होम्योपैथिक डोज है, पर हाँ पहली बार एकदम नीट मत पीजिएगा। जरा रुकिए, मैं थोड़ा पानी का अरेंजमेंट। नहीं नहीं, आप लोगों ने जैसी ली है मैं वैसी ही लूंगा। ब्रावो ब्रदर, पर छोटे छोटे घूंट लेना। पीली, अब बोलोगे? बाप रे, ये तो बड़ी कड़वी है। आप लोग किस सुख के खातिर इस जहर का पान करते हैं? इसका स्वाद जीभ को नहीं मिलता, दिमाग को मिलता है, समझे? हाँ, दिमाग को। तभी तो लोग कहते हैं कि ये आग की तरह है, जलाती भी है और जुड़ाती भी है, जलाती भी है और जुड़ाती भी है ना? बोतल तो खत्म हो चली। अब बोलिए, एक बोतल और लाकर समझदारी का काम किया ना, नहीं तो आप क्या करते? हाँ, वो समझदारी की बात तो मेरे मन में भी आई थी, पर खाली समझदारी के भरोसे तो लाला की दुकान से माल उठाया नहीं जा सकता ना। थोड़ी और ले लो ना, थोड़ी सी और ले लो। सब कुछ भुलाने के लिए पी रहे हो ना, पर भुला नहीं सकोगे, इससे और याद आएगी और तब अपना किस्सा सुनाओगे। क्यों, तब सुनाओगे ना? अरे आइए आइए शशि बाबू, दिमाग खुलासा हुआ? दिमाग? मेरे दिमाग को क्या हुआ? मेरा गिलास कहाँ है? अरे ये रहा, रुकिए भर दूं। बाप रे बाप, आज कैसी अंधेरी रात है। ऐसी रात तो कभी देखी ही नहीं थी। हाँ, नहीं देखी थी? तब उस दिन क्या पूर्णिमा की रात थी? शशि बाबू, आपने तो कहानी पूरी ही नहीं की, बीच में ही छोड़ दी। कहानी? हाँ कहानी, मालती की कहानी, मालती की। हाँ, इसी लड़की की कहानी। नहीं नहीं, मेरी कहानी नहीं, मालती की कहानी, मालती की। अच्छा सातू बाबू, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ दूंगा, क्यों नहीं। मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ। अरे वो तो है ही, गहरा दोस्त। वो तो है ही। नहीं, और भी गहरा, एकदम बचपन से। या मान लीजिए मैं आपका भाई हूँ, छोटा भाई। मैं आपका एक लड़की से परिचय कराता हूँ और कहता हूँ कि मैं इससे ब्याह करना चाहता हूँ। लड़की भी मान लीजिए मुझसे ब्याह करना चाहती है। आप क्या उसे? और बताओ ना, इतने से कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं ठीक से नहीं कह पाया। मान लीजिए मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, नहीं, इससे भी बढ़कर के बड़ा निष्ठुर हूँ, क्रूर हूँ, स्वार्थी हूँ। मुझसे ब्याह करके लड़की सुखी ना रह पाएगी। आप ये जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तब भी क्या? सच बात कहो ना, आगे बोलो। इतना ही नहीं, आप यह भी पाते हैं कि आप उस लड़की से प्रेम करते हैं और वह लड़की भी आपसे प्रेम करती है। लड़की अब समझ चुकी है कि प्रदीप माने मुझसे ब्याह करके उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तब भी क्या आप उसे मेरे हाथों सौंप देंगे? बोलिए, सौंप देंगे? सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी उसे इस तरह आंख में झोंक देना उचित होगा? मैं आपका दोस्त हूं, भाई हूं, क्या इसीलिए ऐसा करना ठीक होगा? बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा आपने शशि बाबू, इसका क्या जवाब दूं? आप कार्तिक दा, तुम हिमाद्री। यही सवाल यदि आप आज सुबह पूछते या शाम तक भी पूछते तो सीधा सा छोटा सा उत्तर देता, हाँ, क्योंकि वो लड़की आपकी दोस्त की मंगेतर है। और इस समय पता नहीं शशिदा, यदि पता होता तो शायद इसे पीने की जरूरत ना पड़ती। मालती,
मालती, हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। मैं जानती थी तुम चले जाने को ही कहोगे। अपनी जीत के सुख का लोभ तुम नहीं छोड़ सकते। जाने से पहले केवल तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई थी। ये क्या कर रही हो मालती? हाँ, ये क्या? तुम्हारे दोस्त, अरे तुम्हारे भाई का प्रसाद। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उससे घृणा करती हूँ और तुम्हें प्यार। किस चीज से किया है ये जानते हो? हम लोगों के ब्याह में तुमने जो चांदी का चाकू दिया था ना, उसे ही गर्म करके। चांदी खूब जल्दी गर्म हो जाती है ना, इसीलिए। नहीं पता हिमाद्री, समय बहुत थोड़ा था। आप दोनों में से भी किसी को नहीं पता होगा। मैं जानता हूं। आप कर्तव्य समझकर उस लड़की को मेरे हाथों सौंप देंगे तो साल भर के अंदर अपने ऊपर तेल छिड़ककर वह लड़की आग लगा देगी। तब हम आप उसके जले शरीर को कंधा देंगे और इसी तरह इसी जगह लाखों से फूंक देंगे। आप सब कहेंगे मेरे अत्याचार से मरी है। ठीक ही तो है, इसीलिए मरी है। इसमें आपका क्या दोष? दुनिया यही कहेगी आपका क्या दोष। और आप लोग भी जब तक दुनिया से गला मिलाकर कह सकेंगे तब तक काश देखिए साधु बाबू, देखता हूं इस बार हार होती है कि जीत। अब हम 10 मिनट में इंटरवल लेंगे।